सो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग यहाँ पर आए और बाकी लोग भी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो वेट कर रहे हैं. दिस इज एन ओपन सेशन फॉर एवरीवन and anyone can join. So if you wish to share the link and if you wish to bring all your companies or friends, you are most welcome to do that. What we will be discussing in today's class will be an overview of this particular exam जिसके लिए आप यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ हम यूनिट 1 जो कि बायोकेमिस्ट्री है उसका कोई एक सिलेक्टिव टॉपिक भी डिस्कस करेंगे. So is everyone okay with English and Hindi? Because I'll be talking mostly in English as well as Hindi. If there is any problem with language, you can let me know. Is there anyone who is from non-Hindi speaking area? No one? You can let me know if there is anyone. कोई नहीं है? Very good. So I hope सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पर इसी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इकट्ठा हुए हैं. Your aim is to prepare for this particular exam and that's why you are here. Just say yes in the chat or you can unmute yourself and you can let me know. I'll just get a quick glimpse from all of you and then I will start. Will not waste much time in discussions. So you can just share your reaction as a thumbs Yes, up. sir. All Sir, right. also forget. Also forget. Very good. So you can also give your hand gestures like thumbs up or raise your hands to say yes instead of chat. Fantastic. So let me just tell you what the CSIR is. जिन लोगों को पता नहीं है, mostly लोगों को पता होगा, but those who are not aware, let me tell them that CSIR represents Council of Scientific and Industrial Research, and it has headquarters in Delhi, and it is headed by a chairperson which is called DG CSIR. So the basic aim of CSIR is to carry out the research to ancillarize industries. जो हमारे देश में इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उन सब के लिए रॉ मटेरियल या रिसर्च करके कोई नई चीज़ें देने का काम जो है वो CSIR का प्राइमरी गोल होता है. एंड इन दैट पर्सपेक्टिव CSIR also looks forward to recruit and to engage or train a lot of human resource who are competent to do these things. मतलब आगे चलकर साइंटिस्ट बनने के लिए, रिसर्चर बनने के लिए CSIR के जो देश भर में इंस्टीट्यूट हैं, 50 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं, उन सब जगह काम करने के लिए जिस मैन पावर की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, उसको ट्रेन करने के लिए वो देश भर से बहुत सारे स्टूडेंट को पिकअप करते हैं. एंड हाउ दे इंसेंटिवाइज देम, हाउ दे मोटिवेट देम by providing a fellowship to do PhD. So they conduct a nationwide exam. Actually, the exam is not conducted by CSIR, but exam is conducted by a national body which is called NTA, National Testing Agency, which conducts the exam, which is called as CSIR NET GRF /LS. Right? Now, NTA has the responsibility of conducting that exam. अभी वो एग्जाम अगले महीने होने वाला है, इसके बाद फिर दिसंबर में होगा. साल में 2 बार एग्जाम होता है और इस एग्जाम के थ्रू वो पिकअप करते हैं करीब 400-500 स्टूडेंट्स को जो कि PhD कर सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, और उनको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाती है. The exact details of fellowship and how you get admitted, all those things you can find somewhere in another video, or you can read the prospectus or information booklet of CSIR NTA GRF exam. Now, GRF means Junior Research Fellowship. This is for 3 years, followed by 2 more years of fellowship, which is called as SRF. CSIR also have a bypass or channel where you can directly reach this 2-year SRF without doing GRF.
but for that you should have experience and you should have worked in some laboratory for some time. There is another way of reaching this SRF directly, but usually by giving this exam, you become junior research fellow and you can also pursue your PhD simultaneously. At the same time, after 3 years, completion of 3 years, you will become senior research fellow. There will be a slight increase in your fellowship. And after 2 years, that means total 5 years, you are likely to complete your PhD, after which you will be open for various kind of jobs and various possibilities to join as scientist in different institutions, or you can also go for teaching profession. Now, one advantage of this exam is that this is also an exam which makes you eligible for lecturership or professorship in the colleges. Because in whole country, there are so many colleges, private colleges, government colleges, universities, where time to time they recruit professors or teachers. And for teachers, they need an eligibility test to be passed. So this is the eligibility test, which is called lectureship eligibility. And this is for your lifetime. एक बार आप लेक्चरशिप अटेंड कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। हालांकि जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप 2 साल के अंदर अंदर उसको अवेल कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपके लिए वो एग्जाम काम का नहीं रहता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। Only top rankers, top 200, 300, or maybe up to 400 sometimes, they are provided fellowship. And after that, there are few more people who are given LS. जिनका JRF हुआ है वो automatically lecturership के लिए eligible होते हैं. So that is the overview of this exam and that is the purpose of this particular exam. साल में 2 बार होता है. अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या आता है and how you can become ready for appearing in this exam and how you can successfully qualify this exam. So जिन लोगों को नहीं पता है, what they can do is they can go to this website of CSIR HRD Human Resource Department .res.in and they can just check the syllabus of CSIR net. You will find that there are total 13 units. इस syllabus में total 13 unit है. अगर ये सिलेबस आपके पास नहीं है तो इस लेक्चर के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप सीरियस हैं तैयारी के लिए तो इस सिलेबस का एक प्रिंट लेकर अपनी टेबल पर हर समय रखें, so that you get a clear view of what you need to prepare. Okay, so on the first page you have all these 13 units which have almost everything related to biology. आज तक आपने जितनी भी बायोलॉजी पढ़ी है, जो भी चीजें पढ़ी है बायोलॉजी में, लगभग सारी चीजें इन 13 यूनिट्स में सम्ड अप हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू न्यू टॉपिक्स लाइक बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये चीजें अभी नहीं है एंड देयर आर प्लान्स टू इनकॉर्पोरेट इन नियर फ्यूचर, तो अभी आपको उन चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर द टॉपिक्स। एंड इफ यू लुक इन दीज टॉपिक्स, इट स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री, जिसका नाम है molecules and their interactions relevant to biology. So here you study most of the biochemistry. Then you study in second unit cellular organization, that means cell biology. Then fundamental processes which happen inside the cells, commonly called as central dogma of molecular biology. So you need to study DNA replication, transcription, translation. That means entire molecular biology will come here. So biochemistry, cell biology, molecular biology, and again, a part of cell biology that includes cell signaling and communication within the cell. So unit 2 and unit 4, they together make cell biology. There is also a portion of cancer biology and immunology in this particular unit. So up to this point, I will say these are the subjects of new origin, modern biology. जो लोग बायोटेक पढ़कर आए हैं, जिन्होंने एमएससी बायोटेक किया है या जो कर रहे हैं, उनके करिकुलम में मास्टर्स डिग्री में ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो लोग बेसिक जूलॉजी पढ़ते हैं, जो लोग बेसिक बॉटनी पढ़ते हैं, एमएससी जूलॉजी किया है, एमएससी बॉटनी किया है, उन लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि शायद आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। हालांकि जूलॉजी के स्टूडेंट थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, एंजाइमोलॉजी भी पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बट आपके लिए इन चीजों में जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं अगर आप प्योर जूलॉजी या प्योर बॉटनी बैकग्राउंड से हैं। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और डाइवर्सिटी यानी कि टेक्सोनॉमी है प्लांट और एनिमल्स की, और साथ ही साथ इकोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं? दीज आर ऑल क्लासिकल सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। जेनेटिक्स आपने बहुत पहले से पढ़ी है, मेंडल्स के लॉज आपने बहुत पहले से पढ़े हैं, आपने प्लांट की फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, प्लांट के असेंट ऑफ सैप, बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ी है। सो दीज आर सम एरियाज, यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, these are the subject which you will have command on if you are from the classical biology background, that means MSc zoology और MSc botany। ये हो सकता है कि जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए प्लांट वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो, और बॉटनी के स्टूडेंट के लिए एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट डिफिकल्ट हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एंड देन कम्स लास्ट 3 यूनिट्स, बाद की 3 यूनिट आती हैं। तो एक बार फिर लास्ट की 3 यूनिट्स में हमें कुछ नई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे एवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो एवोल्यूशन तो आप पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ा है आपने, ओपेरन हेल्डेन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ ये थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन इसका यहाँ पर डिटेल्ड एस्पेक्ट है ओरिजिन और एवोल्यूशन का, डार्विन्स लॉज एंड लामार्क्स थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, ये सारी चीजें यहाँ पर, स्पेशिएशन है, कैसे स्पीशीज बनती हैं, और साथ ही साथ नई चीज इसमें क्या है, बिहेवियर। तो बिहेवियर अक्सर हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आपके रेगुलर करिकुलम में नहीं होता है, सो दिस इज समथिंग न्यू। एंड देन फाइनली अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी, दिस इज अनदर वेरी वेरी डायनेमिक एरिया। इसमें ज्यादातर टेक्निक्स हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पर दोनों यूनिट्स में आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और बहुत सारी जितनी भी टेक्निक्स यूज होती हैं रिसर्च में, वो सारी टेक्निक्स के बारे में यूनिट नंबर 13 में दिया गया है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। अब आप चाहें तो मुझे अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बता सकते हैं। वेर आर यू फ्रॉम, मतलब जगह नहीं पूछ रहा हूं मैं, फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर, मास्टर्स डिग्री आपने किस में की है, ये आप मुझे बता सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टॉक टू मी और इंटरेक्ट विद मी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो MSc किस सब्जेक्ट में है आपकी। यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवन। सर MSc बायोकेमिस्ट्री अभी चल रही है। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। सर MSc बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, वेरी गुड। हाँ, बाकी लोग भी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अनम्यूट करके मुझे जवाब दे सकते हैं। अगर आप हेजिटेट कर रहे हैं तो आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं। I just want to have an idea so that I can guide you better and we can understand each other better so that I can give you more tips. MSc Cognitive Science. Cognitive sciences. So you should be very good at animal behavior, right? Not actually. Neurobiology and... Yeah, that's things I have studied. Where are you doing your MSc? IIT Delhi. IIT Delhi, very good. So what about others? I've only got 3 answers by now. But there are around 7-8 people here. Can I get more responses? Is there anyone from zoology background, pure zoology, pure botany, or biotechnology? So I'm doing my BSc from Life Sciences. Life sciences, very good. Okay. Anything else you would like to share? All right, no problem. So as I told you that since there are so many units and this represents a diversity of subjects, if you are doing your master's in biochemistry, then perhaps biochemistry will be the major focus in your all semesters. But at the same time, you will also be studying some allied subjects
लाइक इम्यूनोलॉजी का भी हो सकता है, वहां पर पार्ट हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी हो, फंडामेंटल सेल बायोलॉजी भी हो। तो आपके करिकुलम से क्या क्या अलाइन कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो। I'm not coming to the point right now whether you should attend classes or not, whether you should join an institute for preparation or not. उस बात पर मैं अभी नहीं आया हूँ, अभी मैं सिर्फ तैयारी की बात कर रहा हूँ कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो पहले आपको सिलेबस अपने पास रखना है, सिलेबस प्रिंट करा के रखना है। और दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपके अपने करिकुलम से इस सिलेबस में कितनी चीजें मैप हो रही हैं, हाउ मेनी टॉपिक्स यू आर एबल टू मैप अकॉर्डिंग टू योर ओन सिलेबस। So if you are able to map at least 7-8 units out of these 13, that means you can do your self-study. And if you are confident about those units, you can even be through this exam without any kind of preparation. आप बिना किसी तैयारी के, बिना किसी guidance के, you can do that. I did that. मैंने खुद किया था. I got 11th rank in the CSIR without any preparation. So, I mean, without any supervision. I did my self-study and I prepared myself. So you can do that. आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक मैप है, रोड मैप है, और साथ ही साथ आपके जो मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम है या जो बैचलर्स में है वो बैचलर्स डिग्री का प्रोग्राम है, उसमें कुछ यूनिट्स मैप हो रही हैं। बट द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन you are not even able to comprehend certain topics. When you look at previous year question papers, you are not able to solve more than 40% or 50% questions by yourself. You find difficulty because you are not even aware about the topics. अगर आप टॉपिक्स जानते ही नहीं हो, अवेयर नहीं हो उनके बारे में, और आपके 8 यूनिट्स मैप नहीं हो पा रहे हैं आपके सिलेबस से, अगर ऐसा हो रहा है कि 1 या 2 यूनिट ही आपके सिलेबस से मैप हो रहा है, बाकी यूनिट बिल्कुल मैप नहीं हो रहे हैं, इन दैट केस you might need guidance. That guidance can be from anyone. कहीं से भी आपको guidance ले सकते हैं वो, whichever place you find suitable, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी teacher आपको अच्छे लगते हैं, जो भी institute अच्छा लगता है, you can do it at your own. And at your convenience, you can either join online or you can join offline for a dedicated preparation. Now, why you should go for offline and when you should choose online, let me also clarify that. If you are self-disciplined, agar aap self-disciplined hain, if you are very active when online video is going on, you are listening to it properly, you are making notes, and you can dedicate that time properly, and you can also give some time after the video, like for 2 hours or 3 hours for your own study, then online is okay for you. But if there is a problem of self-discipline, if there is a problem of procrastination, if there is a disturbance in your house, मान लो गेस्ट आते रहते हैं, आपके घर में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, डिस्टर्बेंस होता रहता है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है, या फिर आप वीडियो तो ज्वाइन कर लेते हैं, ऑनलाइन सुनते रहते हैं, लेकिन कान में ईयरफोन लगा के कुछ और चलता रहता है, फोकस नहीं कर पाते हैं, you don't have infrastructure at your home which is suitable for online discussions. So in that case, I would recommend that you should go for a proper offline institute and you can prepare accordingly, क्योंकि वहां आपको डिसिप्लिन मिलेगा, वहां आपको एक शेड्यूल मिलेगा, वहां एक प्रोग्राम मिलेगा, यू विल बी सेल्फ ड्रिवन। एट द सेम टाइम जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, उनसे एक एटमॉस्फेयर भी मिलेगा प्रिपरेशन का, सो दैट यू कैन डू मच बेटर। बट चॉइस इज योर्स, चॉइस जो है वो आपकी है। We are not forcing you to attend any specific institute. We are not forcing you to join a specific program. You can think wisely and you can make your decision yourself. I hope those points are clear to you. ये points आपको clear हुए? यस सर। सर आईआईटी जैम और नेट का कितना सिलेबस में कितना डिफरेंस है? IIT जैम का जो सिलेबस है, देखो बायोलॉजी तो कुल मिलाकर सेम ही रहती है। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर कवरिंग द एंटायर बायोलॉजी। But when it comes to master's level exam, that means for entering into master's programs, then the type of questions or the level of question is slightly lower. You won't find research oriented questions in IIT JAM. You might also have some components of other subject like physics or chemistry, which is not here in CSIR net.
you might have some components which are specific to IITs, because IIT JAM is for IITs. So you can have some subjects, some topics which are relevant to their institutes. So there might be some differences. But when it comes to specific subject like biochemistry, it is almost the same. Molecular biology, it is almost the same. And you can compare yourself by downloading those syllabus. आप उस syllabus को download करके अपने आप भी compare कर सकते हैं that what are additional topics. But I would say, even if you want to prepare for CSIR net level, at this point of time when you are in bachelor's, it is good enough. Because at the later point of time, sooner or later, even if you do masters in IITs by qualifying IIT JAM, you will have to appear for CSIR net after 2 years. So why not to prepare right now, and you start your preparation right now. You can do additional topics at some point of time, and you can go for IIT JAM exam as well. Automatically you will prepare for that exam. So I hope that answers your query. आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? सर गेट के बारे में बता दीजिए। गेट के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, गेट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। गेट बेसिकली एक सिर्फ लाइफ साइंस का ही एग्जाम नहीं है, बायोलॉजी का ही एग्जाम नहीं है, बट इट इज meant for engineers. It is graduate aptitude test for engineering, and mostly IITs, ICERs, IASC, they together conduct an exam for many different branches. But as engineering is also a part of biology, or you can say biology का एक domain भी है जिसमें engineers बनते हैं, who are mostly developing techniques, technologies, or they are into some industries which are involving engineering kind of work, such as pharmaceutical industries, biotech companies, drug design companies, जहाँ पर biotech से related, pharmacies से related इस तरह के काम होते हैं, उनके लिए वो गेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ताकि आप गेट का एग्जाम जब कंडक्ट क्वालिफाई करें तो उसके बाद आप एमटेक प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकें। बेसिक एम इसका है, बीटेक स्टूडेंट्स गेट का एग्जाम देते हैं और वो एमटेक में जाते हैं, और एमटेक के बाद वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जाते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में गेट के थ्रू पीएचडी में भी एनरोलमेंट हो सकता है। तो इवन इफ यू आर एमएससी स्टूडेंट, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर एमटेक प्रोग्राम्स, even if you are not looking for going into industries, आप नेट से जिस तरह पीएचडी कर सकते हैं वैसे ही आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके भी पीएचडी कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए गेट एग्जाम और नेट एग्जाम ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाते हैं अगर आप पीएचडी सीख कर रहे हैं, बट ओवरऑल पर्पस जो है गेट के एग्जाम का वो थोड़ा अलग है। नाउ कमिंग टू द सिलेबस, हाँ बताइए। भी होता है जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको जॉब भी ऑफर होती है, ऐसा कुछ सुना भी है कि गेट क्लियर करने के बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा बोलेंगे? गेट में टॉप रैंक आने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? जो गेट के टॉपर्स होते हैं उनकी डायरेक्ट जॉब लग जाती है, बोल रहे हो आप? यस सर, यस सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीएचडी के लिए होता है। देखो, गेट में एग्जाम के बाद आप अप्लाई कर सकते हो और उस रैंक को आप अपनी मेरिट की तरह या अपने क्वालिफिकेशन की तरह मेंशन कर सकते हो, बट क्वालिफाई कर लेना एग्जाम को, अच्छी रैंक ले आना, इट डज नॉट गारंटी एनी जॉब। जॉब की गारंटी एग्जाम नहीं देता है, और ये एग्जाम जो है जॉब के लिए है ही नहीं। ये एग्जाम आपका एप्टीट्यूड डिसाइड करता है। इट इज लाइक जैसे सीएसआईआर नेट में लेक्चरशिप की एलिजिबिलिटी होती है, आपकी एलएस हो जाते हो, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप प्रोफेसर की तरह अपॉइंट हो जाओगे एग्जाम क्वालिफाई करके। आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, आप वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। इसी तरह से गेट में अगर आपकी अच्छी रैंक आई है, आप किसी जगह अप्लाई करते हो, इंटरव्यू अच्छा देते हो, तो ये जो रैंक होगी आपकी, ये प्लस पॉइंट होगी, और हो सकता है कि बाकी कैंडिडेट्स के कंपेयर में आपको बेनिफिट मिले, सिलेक्ट कर लिया जाए, तो वहां पर एक एडवांटेज मिलता है। राइट? इसके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जैसे आईएससीआर? हाँ, आइसर्स हैं बहुत सारे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, आइसर सर्च करके देख लेना आप नेट पर, आपको मिल जाएंगे। त्रिवेंद्रम में है, भोपाल में है,
और कोलकाता में है, ये सब कुछ फेमस आईसर्स है, मोहाली में है चंडीगढ़ के पास। तो देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में आईसर्स हैं। इसके अलावा गेट के थ्रू आप आईआईटीज में भी जा सकते हो, जितने भी आईआईटीज हैं वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ जा सकते हो। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, गेट का आप प्रोस्पेक्टस देखोगे डाउनलोड करके तो आपको Yes, उनकी sir. जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, हर साल थोड़े बहुत इसमें अपडेट्स भी होते रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गेट का प्रोस्पेक्टस या इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप डाउनलोड कर लो, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा। अच्छा, Yes, sir. गेट में जो एग्जाम है उसका पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। इट इज नॉट लाइक सीएसआईआर, इट इज नॉट लाइक आईआईटी जैम। वहां पर आपको सब्जेक्ट चूज करने की फ्रीडम भी है। जैसे कुछ लोग गेट जो है इन्वायरमेंटल साइंस में देते हैं, कुछ लोग गेट जो है वो बेसिक सब्जेक्ट लाइक जूलॉजी बॉटनी में दे सकते हैं, कुछ लोग Yes, गेट sir. जो है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस अलग अलग है और उसी हिसाब से आप एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर गेट के सारे सिलेबस को जोड़ दोगे तो वो तो शायद सीएसआईआर के सिलेबस से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ यूनिक चीजें और भी हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, राइट, जो कि Yes, sir. गेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो गेट में आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसके बेसिस वो पर आपकी प्रिपरेशन जो है वो फोकस्ड हो जाती है। इफ यू आर चूजिंग गेट बायोटेक्नोलॉजी, देन सीएसआईआर की प्रिपरेशन जो है अलोन दैट विल नॉट बी हेल्पफुल, बिकॉज आपको दो सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। एक मैथमेटिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है और आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़नी है, राइट। अगर आप Yes, sir. गेट जूलॉजी चूज करते हैं तो उसमें टेक्सोनॉमी ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। अगर आप गेट इकोलॉजिकल साइंसेज में लेते हो तो आपको इकोलॉजी, यहाँ पर तो एक यूनिटी है लेकिन वहां पर आपको Yes. इकोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ने हैं। सो अब क्वेश्चन ये है कि आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो वहां पर क्या प्लान रहता है। क्या आपको गेट का अगर एनरोलमेंट किया है आपने तो गेट की तैयारी अलग से होती है, आईआईटी जैम का एनरोलमेंट किया है तो आईआईटी जैम की तैयारी होती है। तो इसमें क्या है, इंस्टीट्यूट कैन डिसाइड, जो मैनेजमेंट है, जो इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आपको डिलीवर करना है। वेदर कॉमन टॉपिक्स विल बी डन विद सीएसआईआर नेट बैच एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स विल बी डन सेपरेटली, or you will have a separate batch for GATE, you will have a separate batch for IIT JAM, you will have a separate batch for CSIR। तो इस ये जो डिसीजन है, ये चीजें आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां ज्वाइन करोगे वहां क्लियरली पूछ सकते हो और उसके बेसिस पर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन क्या रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, कि आपका एक गोल जो है लाइफ का वो आप डिसाइड कर सकते हो, वेदर यू वांट टू गो इन टीचिंग लाइन और यू वांट टू गो इन इंडस्ट्रीज or you want to go in some other sector. Accordingly, you should choose whatever exams are good for you. You should appear in all the exams. जैसे आपको अगर इंडस्ट्रीज में जाना है और रिसर्च भी करनी है तो आप सीएसआईआर का एग्जाम भी दो, आप डीबीटी का एग्जाम भी दो, आप जो है गेट का एग्जाम भी दो। जो भी एग्जाम आपके लिए, जिनके लिए आप एलिजिबल हो, वो सारे एग्जाम दो, ताकि आप जहां भी अपॉर्चुनिटी बेटर मिले, जहां भी आपकी अच्छी रैंक आए, उसको यूज कर पाओ, स्कोर को अवेल कर पाओ। जब इतनी बायोलॉजी पढ़ ही रहे हो आप, तो थोड़ी सी और बायोलॉजी, बाकी जो टॉपिक बचे गेट के एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो पढ़ लो, आपको Yes, आईआईटी sir. जैम के टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ लो, तो आपकी सारी तैयारी हो जाएगी एंड यू अपीयर इन एनी एग्जाम, राइट। Yes. दैट इज द बेस्ट अप्रोच, वो सबसे अच्छी अप्रोच है। क्योंकि नेट में जहां जितने सीट्स हैं, अगर आप गेट में देखोगे तो सीट्स लिमिटेड हो जाती हैं, आईआईटी जैम में सीट्स जो है लिमिटेड हो जाती हैं। सो दैट बिकम्स मोर कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव ज्यादा हो जाता है। और अगर आप एक चीज फोकस करोगे कि नहीं मेरे को सीएसआईआर नेट नहीं देना है, मेरे को गेट ही देना है, अगर आप सिर्फ वो फोकस करोगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे। दैट इज द आई मीन ऑनेस्ट ओपिनियन फ्रॉम माय साइड, वो मेरी तरफ से एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। बाकी अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप गेट एक बार में थ्रू कर सकते हो और आप अच्छी रैंक ला सकते हो, इफ यू आर वेरी वेरी श्योर अबाउट योर गोल, इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट your preparation, then you can choose a single one. But I would say you should keep your options open as much as possible. ठीक है, तो Yes, sir. Thank you. ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के वो क्लियर हो गए। Yes, sir. Thank you, sir. वेरी गुड। आप और भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज हम केवल इंटरैक्टिव सेशन ही रख रहे हैं, आज हम आपस में इंटरैक्ट करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। टॉपिक तो हम पढ़ेंगे ही कुछ ना कुछ, डोंट वरी अबाउट दैट,
ये मत सोचना कि आए थे पढ़ने के लिए और यहाँ तो गॉसिप शुरू हो गई, यहाँ तो बातें करना शुरू कर दिया सर ने, पढ़ा तो रहे नहीं है ना, ऐसा नहीं है. वी विल ऑल्सो डिस्कस, बट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड, so you can ask your queries as well. So can we now move on to this details of the syllabus? थोड़ा सा आगे बढ़े, इसमें हम और डिटेल देखें. Yes, sir. Yes, sir. All right. So see, the width and span of this syllabus is too large. You have to understand this fact. Now, you also have to understand the fact that all these topics cannot be taught by one or two person, right? So if you're looking for a mentor, अगर आप कोई mentor ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई institute ढूंढ रहे हैं तैयारी करने के लिए, so the things that you must look forward, आपको जो चीजें देखनी होंगी डिसीजन करने में, वो ये कि not a single person or not any two persons are teaching entire thing. You have to make sure that different topics are being taught by experts in their field, जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने खुद रिसर्च की है, जिन्होंने खुद एग्जाम भी क्वालिफाई किया है CSIR का. ऐसे मेंटर्स आपको ढूंढने होंगे, ऐसे लोग आपको ढूंढने होंगे, वो लोग आपको पढ़ाते हो. तो जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हो, मेक श्योर दैट इट हैज अ गुड बैकग्राउंड एंड गुड फैकल्टी, and it has a plenty of teachers which are dealing with different type of units. क्योंकि obvious सी बात है, अगर कोई आपको जूलॉजी पढ़ा रहा है और अगर वही पर्सन आपको बॉटनी भी पढ़ा रहा है, इसका मतलब वो उतना डीप में नहीं पढ़ा सकता. If that person might have done several years of research or work in one subject, only then he would have become expert to teach in that area. But if that is teaching all the subjects, that means he is not expert, he or she is not expert, and perhaps that will not be a good choice. So it is true that some people who are teaching biochemistry, they can also be good at cell biology or molecular biology. People who are teaching botany, plant physiology, they might be good at plant developmental biology and ecology and genetics. People who are teaching animal physiology, they will also be good at evolution and behavior. And those people who have done plenty of research, they will be good at methods in biology or techniques and applied biology. So you can do a little bit of background search for the faculties or the people with whom you are getting a mentorship, right? So that's the basic idea of choosing the right institute, choosing the right place for your mentorship. Okay. Apart from that, how you are going to prepare, that is one more thing. Along with your institute, along with your preparatory mentorship, जब आप किसी institute को join करेंगे, कहीं किसी coaching को join करेंगे, तो देखो coaching institutes or any other institutes, they might make claims that यहाँ से इतने selections हुए हैं, यहाँ से ranks आई है, यहाँ से first rank आई है, आपकी भी आ जाएगी. No, that's not statistically correct. It is mere chance that an institute might have got a good student and they might have turned out to be rank 1 or rank 2, or they might have got selected. If it has been true, अगर ये बात सच है कि इंस्टीट्यूट की वजह से ही सिलेक्शन होता है, तो फिर तो किसी इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं सबका सिलेक्शन होना चाहिए. Am I right or not? Scientifically speaking. Yes, sir. But this does not happen. ऐसा तो नहीं होता है कि कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे गए सबका सिलेक्शन हो गया. ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता. It means institutes might be giving you mentorship, they might be improving your scores. वो आपके स्कोर बढ़ा सकते हैं, आपकी फोकस तैयारी करके स्कोर अच्छा हो सकता है. तो एक ऐसा पर्सन जिसके बिना तैयारी के बॉर्डर लाइन पर मार्क्स आए थे, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो तैयारी करके किसी इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जिसके मार्क्स ही नहीं आ रहे थे और वो एकदम किसी इंस्टीट्यूट में गया और रैंक 1 आ गई. These kind of claims are really wrong. So you have to understand those misleading advertisements also. आपको इन पर भी ध्यान देना है कि किसी misleading advertisement के trap में आप ना आए. And you have to keep in mind that your own effort will also be very, very important in your preparation. Coachings or mentorship alone cannot make you qualify in any exam. They can definitely increase your score, but at the same time, your own inputs, your own way of preparation will also contribute almost 50% to the success of you in exam. All right? तो आप तैयारी कैसे करें, सक्सेसफुल होने के लिए तैयारी कैसे की जाए,
इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए आपको, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? तो देखिए, प्रिपरेशन के लिए जो मैंने तरीका बताया है, फिगर आउट योर बेस्ट 8 यूनिट्स। आपको पूरे सिलेबस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर एग्जाम हैज गॉट सो मेनी चॉइसेस इन क्वेश्चंस। आप अगर एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट एक जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट होता है, डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। बी पार्ट में जनरल बायोलॉजी आती है, और सी पार्ट में थोड़े से रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस होते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको बी पार्ट में भी चॉइस मिलती है, और सी पार्ट में तो बहुत ज्यादा चॉइस मिलती है। वहां आपको 75 क्वेश्चंस में से सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। दिस इज नेवर सीन इन एनी अदर एग्जाम। तो ऐसा क्यों होता है? वाई CSIR इज हैविंग only 35 questions only 25 questions to be done in 75 questions? ऐसा क्यों होता है कि आपको 25 क्वेश्चन ही करने हैं? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट यू माइट बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स। कोई बायोकेमिस्ट्री से MSc करके आया है, कोई इकोलॉजी से करके आया है, कोई बिहेवियरल साइंस से करके आया है, कोई लाइफ साइंस से करके आया है। तो एवरीबडी मे नॉट बी गुड एट एवरी सब्जेक्ट। तो अगर हम किसी एक का सब्जेक्ट दे देंगे पूरा के पूरे एग्जाम में, और कंपलसरी बना देंगे सारे क्वेश्चंस को, तो किसी एक के लिए वो एग्जाम बायस्ड हो जाएगा, दूसरों के लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस एग्जाम में चॉइस दी जाती है, ताकि आप अपने एरिया में, जिस एरिया में आप पढ़ के आए हैं उसमें तो बेस्ट होंगे, तो उसके क्वेश्चंस को आप फॉलो कीजिए, उसके क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। अगर आपने उसके अपनी तैयारी अच्छे से की है, तो आप 25 क्वेश्चन अपने एरिया के तो आप कर ही पाएंगे। दैट इज वाई देयर इज अ चॉइस, and that is why I'm saying it is not necessary to cover up all the 13 units, but you can pick up the best 8 units. But make sure कि जो यूनिट्स आप पिकअप कर रहे हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हो, उसकी तैयारी आपको 100% करनी है। लेकिन आपको थोड़ा डाउट है कि नहीं, हम जो तैयारी करेंगे वो हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, तो 2 यूनिट और बफर के लिए रख लीजिए। 8 यूनिट आप अपनी फेवरेट यूनिट्स बना लीजिए, परफेक्ट यूनिट्स बना लीजिए, और 2 यूनिट्स जो है एडिशनल बफर यूनिट्स रख लीजिए। सो इवन इफ यू वर्क विद 10 यूनिट्स, दैट इज फंडामेंटली फाइन, एंड देन यू कैन मेक अ चॉइस। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हो तो जूलॉजी वाले टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हो तो बॉटनी छोड़ दो। दिस इज हाउ यू कैन मेक अ चॉइस ऑन द टॉपिक्स। नाउ यू नीड अ रूटीन फॉर दैट। प्रिपरेशन के लिए आपका एक रूटीन होना चाहिए। यू मस्ट अटेंड लेक्चर्स, आपको रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए। वाई लेक्चर्स विल बी हेल्पफुल टू यू? ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी कहीं नहीं मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में और कहीं टीचर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म्स नहीं है। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपको यूट्यूब से लेकर दुनिया भर, इंटरनेट की दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग भी, उनके वीडियोस, उनकी मेंटरशिप मिल सकती है। राइट, यू कैन फाइंड professors of MIT and professors of best colleges of the world who are also speaking online and who also have posted their lectures. But the problem is those lectures will not be organized as per your syllabus. आपको रैंडमली मिलेगा, किसी टॉपिक पे किसी का वीडियो मिल गया, किसी टॉपिक पे किसी का वीडियो मिल गया। दूसरी बात, यूट्यूब या ऑनलाइन रिसोर्सेज में जब आप कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो, सो यू नेवर नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है, कौन फैक्चुअली करेक्ट है, कौन फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो टॉपिक, उनका लेक्चर जो है वो 4 घंटे का होगा, उस 4 घंटे में पता लगा 3 घंटे कोई कंटेंट ही नहीं है, या फिर बहुत ही रिपीटेटिव चीजें बता रहे हैं, एक ही चीज को 10 बार बता रहे हैं, जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है। दैट इज नॉट द वे यू शुड लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। You need a very, very precise and a very focused content जिसमें आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो। अगर आप 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और पता लगा उसमें से एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है एग्जाम में, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। एंड योर टाइम इज वेरी प्रेशियस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल हैव टू बी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि अगले 6 महीने में आपको एग्जाम देना है, तो उस टाइम तक आपकी पूरी यूनिट्स कवर हो जाए। सो यू हैव टू गेट कंटेंट, और यू हैव टू फॉलो द कंटेंट where you are getting maximum knowledge, जहां से आपको मैक्सिमम इनपुट्स मिल रहे हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको आपको फॉलो करना है।
और रैंडम वेबसाइट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब जगह अननोन ऑथर्स, अननोन लोगों से कोई भी इनपुट्स आ रहे हैं अगर साइंस के बारे में, आई डोंट थिंक दैट इज वर्दी इनफ टू वेस्ट योर टाइम। वहां पर आपको जाकर उन चीजों से सीखना बिल्कुल भी गलत है। बेटर यू स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग बुक्स, गेट सम स्टैंडर्ड बुक्स and read from those textbooks. That will be the better utilization of your time. So this is how you can focus yourself. At the same time, you will also have to get practice of old year papers, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे या लेक्चर सुनेंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको भी देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए, मैं इसका एक रूल बताता हूं आपको। 30-60-30, 30 मिनट आप PYQs देखो रैंडमली। कोई भी टॉपिक शुरू कर रहे हो, 30 मिनट पहले PYQs देख लो। जस्ट गेट आइडिया, डोंट सॉल्व देम, जस्ट गेट आइडिया कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। देन 60 मिनट्स आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, आइदर फ्रॉम बुक और फ्रॉम योर नोट्स और फ्रॉम नोट्स ऑफ द लेक्चर, कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। और बाद में अगले 30 मिनट्स अगेन यू गो फॉर PYQs, नाउ सॉल्व देम। अब इनको क्या करो, सॉल्व करो। सो दिस इज हाउ योर प्रिपरेशन विल बी वेरी वेरी एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट प्रिपरेशन होगी। क्योंकि हम क्या होता है, कई बार किताब खोली, हम पढ़ने बैठे, लेटर से बायोकेमिस्ट्री पढ़ने बैठे, तो हमने पूरी बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, लेकिन हमने कुछ चीजों पर जिन पर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए था उन पर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इसमें से क्या आता है क्या नहीं आता है एग्जाम में। जबकि आपके एग्जाम का सिलेबस डिफाइंड है, उसका पैटर्न डिफाइंड है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप 30 मिनट अपने स्पेंड कर लोगे क्वेश्चंस को देखने में, तो उससे क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपकी नजर उन चीजों पर ज्यादा जाएगी जो क्वेश्चन पूछे गए। और फाइनली एक बार 30 मिनट और लगा दो। तो ये देखो कितने घंटे का प्लान बताया मैंने, ये 2 घंटे का प्लान बताया। और इसके अलावा आप दिन में चाहो तो 2 घंटे, या किसी इंस्टीट्यूट में हो तो 4 घंटे वीडियो लेक्चर्स, एक मेंटोर के लेक्चर अटेंड कर सकते हो, राइट। तो अगर आप 2 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लेते हो, सिर्फ इतना, अपार्ट फ्रॉम योर routine activities which include your coaching, which include your lectures, you just need 2 hours extra time, and this strategy you have to follow. Nobody can stop you from getting selected in the exam. All right, this should be way of your reading. Now the next thing is where from you should read, कहां से आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भी आपका सिलेबस दिया है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, तो क्या पढ़ना चाहिए। I will say go for standard books. What do you mean by standard books? Standard books are those which are written by renowned authors, जिन्होंने उस सब्जेक्ट में कई सालों तक काम किया है, जो उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह जानते थे, और जिन्होंने उस बुक को मेटिकुलसली लिखा है, जिसकी वजह से वो दुनिया भर में किताबें जानी जाती हैं। जैसे लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री है, लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री by Nelson and Cox. So that is one of the, I mean, very very precious book for those who are studying biochemistry. जिन्होंने अभी बताया मुझे कि MSc बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, वो लोग जरूर जानते होंगे इस बुक का नाम, yes or no? Yes, sir. बिल्कुल जानते होंगे। सो लेनिंजर बायोकेमिस्ट्री हो गया, या इसी तरह से ब्रूस एल्बर्ट की बुक है द सेल, लॉडिश एक बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, गिलबर्ट्स की एक बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, क्यूबे की एक बुक है इम्यूनोलॉजी की। इफ यू वांट वी कैन प्रोवाइड यू द एंटायर लिस्ट, आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको जरूरत है तो, आपने अगर नाम नहीं सुने हैं तो। इन स्टैंडर्ड बुक्स को आपको फॉलो करना है। एंड व्हेन आई से फॉलो, दैट डजंट मीन दैट पेज बाय पेज सारा पढ़ने बैठ जाना है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू दैट, नोबडी कैन डू दैट इन दिस 6 months पीरियड। 6 महीने के टाइम में आप सारी किताबें नहीं पढ़ सकते हो स्टैंडर्ड, बस। बट यस, आपके कोई 3-4 फेवरेट सब्जेक्ट तो होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि एग्जाम में आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन 100% स्कोर कर लोगे, तो उन फेवरेट सब्जेक्ट की किताब को आप जरूर पलट के देखो। और पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है,
जैसे लेनिंजर जो है बायोकेमिस्ट्री, इसमें बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोमोलिक्यूल्स भी हैं, इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी काफी पोर्शन है, इसमें रेप्लिकेशन है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। तो जब आप एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, सो लुक एट योर सिलेबस एंड रीड दोज टॉपिक्स विच आर इन योर सिलेबस। जो आपके सिलेबस में चीजें हैं उन्हें पिकअप करो, उन्हें पढ़ो, बात खत्म हो गई। यू नीड नॉट टू गो फॉर एंटायर बुक, राइट? This is how you can go to standard books. See, the advantage of standard books is that they have narrated the concepts very well. वो concepts को narrate करते हैं. When you read those books, you feel like author is speaking to you and author is communicating with you. But when you read books of inexperienced authors, guide books from coaching institutes, they can just be notes. वो आपके लिए क्या हो सकते हैं? क्विक नोट्स हो सकते हैं, रिविजन में काम आ सकते हैं, लेकिन आप उनको अपना फंडामेंटल कभी मत बनाइए। इफ यू मेक देम योर फंडामेंटल, यू आर गोइंग टू बी इन सम काइंड ऑफ लॉस। आपका नुकसान जरूर होगा अगर आप ऐसी किताबों को फंडामेंटल बना लेंगे जो किसी इनएक्सपीरियंस्ड ऑथर ने लिखी हैं, क्योंकि वहां आधी अधूरी कहानियां होती हैं। कोई कंटेंट यहाँ से उठा के डाल दिया, कोई दूसरी जगह से उठा के डाल दिया, कोई टेबल कहीं से उठा के डाल दी। तो आपको रिविजन के लिए तो बहुत अच्छा है, लास्ट मिनट रिविजन करना हो तो जरूर उन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो, बट नॉट एज अ रेफरेंस बुक, नॉट एज अ रेफरेंस गाइड, क्योंकि उससे आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, उससे आपको रटने वाली चीजें मिल जाएंगी, समझ में नहीं आएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। किसने कैसे रिसर्च की थी, रिसर्च से कैसे पता चला था क्या हुआ, किसको किस चीज का प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था, कैसे करके आगे चीजें बढ़ी थी। तो एक क्रोनोलॉजिकल वे में जो सीक्वेंस होता है, जो स्टोरी होती है, वो स्टोरी आपको इन किताबों में मिलेगी और आपको एक फिल्म की तरह, एक मूवी की तरह चीजें समझ आएंगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ रीडिंग स्टैंडर्ड बुक। सो दैट्स व्हाट इज माय सजेशन टू यू। ये मेरा सजेशन है आपको। साथ ही साथ आप अपने सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स जरूर बनाओ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। whenever you are attending lectures of any teacher, make sure that you are writing important points in your own way, क्योंकि टीचर के हैंडआउट्स, टीचर की लिखी हुई चीजें आप जब उनको देखोगे तो हाँ, टीचर की बातें तो याद आ जाएंगी आपको, लेकिन आपने क्या समझा, आपने क्या ग्रास्प किया, वो आपको बेस्ट समझ में आएगा जब आप अपने हाथ से लिखोगे। सो मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग नोट्स एंड दोज नोट्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, ये सारी बातें समझ आ गई। Can I now move on to the syllabus part and what I will be teaching you? Yes, sir. पक्का? आगे चले? Yes, sir. Very good. So I will be teaching you two important aspects of this syllabus. One is the biochemistry part, and other one is the last part, that is applied biology and methods in biology. Now, let me tell you that I have completed my PhD in biochemistry itself. I have also done my master's in biochemistry, and I have more than a decade of experience in fundamental research related to biochemistry. So that brings me here and that makes me competent for these topics, and I will try to give my inputs to you on the basis of what I have learned in past 10-15 years. Moreover, I will also be guiding you to solve the questions which have come from these topics, previous year questions, since I have been teaching for a long time and I myself have cleared CSIR NET exam. So I can guide you based on my personal experiences that how these topics have to be studied, what will be having more weightage, what will be having less weightage. One more thing, sometimes you might ask that which unit is more important, किस unit से ज़्यादा question आते हैं, किससे कम आते हैं. So the trend says, a general trend says that there is almost equivalent weightage of all the units. सारी unit की weightage लगभग बराबर है, किसी की बहुत ज़्यादा weightage या किसी की बहुत ज़्यादा weightage, कम weightage नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि within the unit, अगर आप unit के अंदर कुछ topics देखते हो, तो वहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं कंटिन्यूअसली और कुछ टॉपिक्स बहुत कम पूछे जाते हैं. तो वो आपको टीचर कम्युनिकेट करेंगे, whosoever will be teaching you, they will tell you that okay, within this unit what you should read more, what you should emphasize more, what you should emphasize less. That will help you to boost your preparation. So in this first unit, if you look, as I told you, first unit is
biochemistry. All right. I hope this is visible to you. आप देख पा रहे हो biochemistry unit? So in this unit, you have plenty of things. Points have been written from A to J, and a bit of they have been shuffled, but I would say chronologically, biochemistry should start with the chemistry, because biochemistry में नाम ही chemistry है, biological molecules की chemistry है. तो सबसे पहले थोड़ी chemistry सीखी जाती है biochemistry में, which includes the structure of atoms, molecules, how bonds are formed, कितने तरह के bonds होते हैं, किसकी strength कितनी होती है, strong bonds क्या होते हैं, weak bonds क्या होते हैं. Then you can also look for stabilizing interactions, क्योंकि bond जब आप पढ़ेंगे तो bond के साथ आप उन इंटरेक्शंस की बात भी करते हो जो बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स के अंदर होते हैं जो उनको स्टेबलाइज करते हैं. सो स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस which include van der Waals forces, electrostatic, hydrogen bonding, hydrophobic interactions, etc. They are generally studied along with the chemical bonds. At the same time, the major portion of biochemistry जिसको आप कहते हो कि हाँ कोर बायोकेमिस्ट्री है, वो है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना. तो हमारे बॉडी के अंदर 4 तरह के प्राइमरी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. तो इन चारों बायोमोलिक्यूल के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये आपका सेकंड टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी टॉपिक से कनेक्टेड 2-3 टॉपिक और हैं जो आगे दिए हैं, जैसे कि कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन, मोटिव, फोल्ड. तो जब आप प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे. जब आप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे तो कॉन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, ए, बी, जेड डीएनए, टीआरएनए, माइक्रो आरएनए, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा. सो पॉइंट नंबर जी एंड एच दे विल बी कवर्ड व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट बायोमोलिक्यूल्स. Now, besides the biomolecules, you also have to learn some more principles of chemistry. कुछ और chemistry के principles आपको आने चाहिए, क्योंकि जब आप chemical reactions पढ़ते हो biology में, they are generally governed by principles of chemistry, like you should know the optimum pH, pH क्या होता है, buffer क्या होता है, rate of reaction क्या होती है, kinetics क्या होती है, reactions की thermodynamics क्या होती है, colligative properties क्या होती हैं. So all that part becomes the part of your chemistry. And you also have bioenergetics in detail, that how biological systems produce energy and utilize energy. That is also an important part. Now, when you study about biomolecules, then you also learn about metabolism of biomolecules. इन चारों बायोमोलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म भी आपको पढ़ना होता है. दैट इज योर लास्ट टॉपिक, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन्स. तो सारे बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है. आपको केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका बायोएनर्जेटिक्स, पीएच का कॉन्सेप्ट, बफर का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. और एक तीसरा पार्ट जो है दैट इज योर एंजाइमोलॉजी. तो एंजाइमोलॉजी मुझे लगता है जो भी बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी पढ़ी होगी, और जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी पढ़ी होगी. लगभग सारे लोग एंजाइमोलॉजी पढ़ते हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड आइसोजाइम्स, ये सारे टॉपिक आपके एंजाइमोलॉजी के अंदर आते हैं. तो अगर हम ब्रॉडली इस सिलेबस को डिवाइड करें, इफ यू डिवाइड दिस सिलेबस ब्रॉडली into components कि कैसे पढ़ना चाहिए इसको, so I would say we can divide it into 3 parts. There will be some component of chemistry which will include atoms, molecules, bonding, interactions जो stabilize करने में मदद करते हैं, concept of pH, buffer, bioenergetics, right? All these concepts will be the part of your chemistry. जो आपको chemistry, लेकिन chemistry से थोड़ा अलग है. आप सोचोगे कि chemistry के टीचर से क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? तो यहाँ पर chemistry तो पढ़नी है, लेकिन वो biological molecules की chemistry पढ़नी है. You have to give examples of biomolecules here. That's why it is part of biochemistry. Now the second part, which will have more weightage,
that will be called as biomolecules. तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है? आपको 4 प्राइमरी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? प्रोटीन्स, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉन्फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, सारा कुछ। कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, लिपिड्स। अच्छा, लिपिड्स का जो टॉपिक है ये आपका एक जगह और आएगा जब आप सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ोगे। तो बायोकेमिस्ट्री में तो खाली केमिकल कंपोजिशन पढ़ाया जाता है, लेकिन वो केमिकल कंपोजिशन मेम्ब्रेन के लिए भी एप्लीकेबल होता है, और मेम्ब्रेन्स असेंबल कैसे होती हैं, स्टेबलाइज कैसे होती हैं, वो पार्ट आप सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे। और फाइनली आप पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ये टॉपिक भी आपका बाकी यूनिट से कनेक्ट होगा। जब आप यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की बेसिक बायोकेमिस्ट्री समझ जाएंगे तो जेनेटिक्स में इसके बेस्ड प्रिंसिपल्स, कैसे जीन्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ओपेरॉन कैसे काम करता है, न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम और क्रोमोसोम कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ आएंगी जब आप बेसिक स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड्स का जान जाएंगे। तो ये एक पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है बायोकेमिस्ट्री का ही, वो है आपका इन सारे बायोमोलिक्यूल का मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम्स, यानी कि एंजाइमोलॉजी। तो ये एक अलग मेजर पार्ट है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो कहां कहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं? एटम्स के ऊपर काफी कम क्वेश्चन आए हैं, लेकिन बॉन्डिंग और इंटरेक्शंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लेकर आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड, इन सब के ऊपर प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। पीएच और बफर के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन रहा है। एवरी ईयर, every exam will have a question on pH and buffer, and one question would have been from bioenergetics, which include the concept of Gibbs free energy, डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट पर एक दो क्वेश्चन जरूर रहा है। बायोमोलिक्यूल्स की आप बात करें तो प्रोटीन्स पर कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी रामचंद्रन प्लॉट पे अक्सर देखने को मिलता है। क्वेश्चन प्रोटीन के फोल्डिंग पर देखने को मिलता है, अमीनो एसिड्स के ऊपर देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रेट के कॉन्फॉर्मेशंस पर देखने को मिलता है, लिपिड्स पर भी क्वेश्चंस कभी कभी मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड में ए, बी और जेड डीएनए या बेस पेयरिंग के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एंजाइमोलॉजी में लगभग एक बार फिर हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो 2 स्टार लगे हुए हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, सिंगल स्टार लगे हुए हैं वो कम पूछे जाते हैं, और जिन पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है दे आर वेरी वेरी रेयरली आस्क्ड। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। तो ये आप अपने पास रख लेना, आपके लिए इंटायर गाइड रहेगा, ये गाइडिंग प्रिंसिपल रहेगा कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम एक बेसिक सा कोई टॉपिक लेंगे। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि ये टॉपिक्स शुरू में ना पढ़ें आप, क्योंकि नहीं तो क्या होता है यूजुअली
डरने लग जाते हैं हम सब लोग बायोकेमिस्ट्री से। लगता है कि अच्छा न्यूमेरिकल्स आ गए, क्वेश्चंस आ गए, केमिस्ट्री आ गई, कुछ चार्मिंग हो ही नहीं रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है, लुकिंग लाइक अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। सो इन टॉपिक्स पर हम बाद में आते हैं जब हम थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं, व्हेन टीचर गेट्स फेमिलियर विद यू, व्हेन यू गेट फेमिलियर विद द सब्जेक्ट। सो basically my strategy of teaching to you is this part comes later, but we first go with biomolecules because they are something with which you are familiar. आप थोड़ा बहुत जानते हो इनके बारे में, और जब आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में इमेजिन करते हो तो आपके माइंड में पिक्चर भी इन्हीं चीजों की आती है कि बायोकेमिस्ट्री मतलब हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं. That's how you imagine biochemistry, right? So we start with this point and then we go to this, and then finally biochemistry ends with the metabolism and enzymology. This is how we'll be taking care of entire unit. And within each unit, when we will be studying any topic, at the completion of each topic, we will also look at previous year questions. जब हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और हम ये समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, कैसे उनको आंसर करना है. We will also do that. So let me take you through a glimpse of one of the four biomolecules. 4 बायोमोलिक्यूल्स जो हैं हमारे शरीर में. पहले तो ये बताइए आप बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? Tell me, what is a biomolecule? Cell organ. Yes? What is a biomolecule? Anyone? Cell organ is Sorry, I could not hear you. बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट बताएंगे, जो लोग एमएससी कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में या कर चुके हैं. I would expect answer from you. What is a biomolecule? molecules present in cell. Molecules present in biological system. But if that is true, then carbon dioxide is also present in our body. Water Yes. is also present. सर, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है. अभी ठीक आ रहा है? यस सर. हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम में होते हैं, तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बायोमोलिक्यूल होना चाहिए. क्या वो है? क्योंकि वो तो हमारी बॉडी में होती है कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी में वाटर भी है, क्या वाटर भी बायोमोलिक्यूल है? यस और नो? ये चीजें तो जानना जरूरी है ना सबसे पहले. इज वाटर बायोमोलिक्यूल? यस और नो? बताइए, एनीवन? So answer is no. Water is not a biomolecule. Carbon dioxide is not a biomolecule, because biomolecules are those which are synthesized by living entities. And of course, they are found inside living organism. That is add-on point. But they are synthesized by living organism. उनको living organism ही बनाते हैं. पानी जो है वो non-living चीजों में भी हो सकता है, right? Oceans are not living organisms. There is a plenty of water. Rain होता है, वहाँ पानी है, pond में पानी है. So water is a component of living organism. ये अलग बात है कि living organism का 70% portion जो है water ही होता है, but water is not a biomolecule, right? So we have to make very, very clear distinction on what biomolecule is and what it is, what is not a biomolecule. So we may have to study water. हमको पानी के बारे में पढ़ना होगा बायोकेमिस्ट्री में, हमको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना होगा. But when it comes to studying biomolecules, we have to stick to only 4 basic categories, that is protein, carbohydrate, nucleic acids and lipids. There are some smaller biomolecules which might not fall in any of these categories. कुछ और मेटाबोलाइट्स होते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे विटामिन्स हैं. तो विटामिन्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन प्लेस सम ऑफ द विटामिन्स इन कार्बोहाइड्रेट, some vitamins can be placed in lipids, and some vitamins can be placed separately which might not be falling in all these 4 categories.
लेकिन 4 मेजर ग्रुप हैं बायोमोलिक्यूल्स के जो लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, और उनमें से एक है प्रोटीन, राइट? तो प्रोटीन वर्ड जो है वो एक ग्रीक गॉड के नाम प्रोटियस के नाम से ओरिजिनेट हुआ है, क्योंकि भगवान जो है, गॉड जो है, वो ये माना जाता है दे आर omniscient एंड omnipresent, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब जगह प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज व्हाट religion believes about the god. So based on the name of god Proteus, the name protein was given, which means a biomolecule that is present almost all the places, at all the places, and in all living organisms. ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो हर जगह देखने को मिलेगा और लगभग सारे तरह के काम भी कर सकता है. कौन कौन से काम? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या काम होते हैं करने के लिए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? दे कैन लोकोमोट, वो मूव कर सकते हैं, वो रेस्पायर कर सकते हैं, वो मेटाबोलाइज कर सकते हैं चीजों को, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आप किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करोगे, यू विल फाइंड द रोल्स ऑफ प्रोटीन्स. हमारे मसल के मूवमेंट में प्रोटीन्स का काम होता है, रिप्रोडक्शन में प्रोटीन्स का काम होता है, वहां पर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व है. सेल के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो काम करते रहते हैं. हॉर्मोन्स जो हैं वो भी ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, कुछ लिपिड्स हो सकते हैं. एंजाइम्स जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं वो भी प्रोटीन्स हो सकते हैं. तो इतने सारे काम करने वाले जो बायोमोलिक्यूल है, उसका नाम क्या रखा गया? प्रोटीन रखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ये तो बात हुई ओरिजिन की, ये वर्ड कहाँ से आया, प्रोटीन का मतलब क्या है. लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल सेंस में बात करें या केमिकल सेंस में बात करें, तो प्रोटीन की डेफिनेशन क्या है? They are considered as polymers of amino acids. प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड का पॉलीमर कहा जाता है. पॉलीमर समझते हैं आप लोग? When a molecule joins and makes a long chain, then it is called as polymer. जब बहुत सारी यूनिट जुड़ती चली जाती हैं और एक लंबी चेन बना लेती है एक दूसरे से जुड़कर, then it is called as polymer. So amino acids are joined together. अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं, और जुड़कर क्या बना लेते हैं? they make a long polypeptide chain that is called protein, and they are connected by a bond or a linkage which is called peptide linkage. तो प्रोटीन समझ आ गया आपको? बायोकेमिकली प्रोटीन किसे कहते हैं? आर वी क्लियर? और प्रोटीन वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, प्रोटीन का नाम प्रोटीन क्यों है, ये दोनों बातें समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. This is just the beginning, okay? Don't think that we will be able to complete the topic in a day or two. This is just a beginning. I'm trying to familiarize you with the topic. We have plenty of details to learn in each topic. Now, यहाँ पर अब एक word आ गया which we need to focus upon, that is amino acids. We cannot understand proteins unless we understand this very well. जब तक हम amino acid को ठीक से नहीं समझेंगे, we will not be able to comprehend the structure of proteins or the functions of protein. So who is going to tell me, कौन बताएगा मुझे